Dobry večer. I believe I am audible. Hello everyone. Are we connected? All right. So here we go. I can see it has started. So I, Shivaji Bhaskar, Program Coordinator and the faculty from the School of Foreign Languages IGNOU, which is also known as SOFL IGNOU, welcome you all to this live session on Facebook, especially for the learners of Certificate in Russian Language, which is also known as CRUL. As you know that we are offering this program in two different modes, that is open and distance learning mode, which is also known as ODL, as well as from the beginning of this new year of January 2020 we have started the online mode as well. So we have been doing a lot of sessions on Facebook and on Microsoft Teams for the learners, and that is why to have a platform for learners both from ODL and online, we have this initiative of offering the weekly live sessions on Facebook Live as recommended by our Vice Chancellor and Pro Vice Chancellors and Director, as well as per the need arising out of this time of crisis due to COVID-19. And as I believe that not only it is a great initiative, it is also very helpful not only for the learners but for faculty like me as well, because it gives me an opportunity to interact with you all and many other new people who are joining us. That is why it is a great opportunity for all of us to have interactions, to have meetings, and to have a dialogue so that we can understand Russian first and then we can also help each other. Many of you who have joined our sessions earlier must be knowing that we are also running our WhatsApp group, and recently we have started our Telegram group. So I would like to request, as I can see Jackie is there, to post the link of the WhatsApp group and the Telegram link over here as well, so that people who do not have access to these groups, they can also join us. The utility and the advantage for students is that they can access the group, they can also access our previous videos, they can have access to our previous online lectures which we have taken on the Microsoft Teams. So it would definitely help them as well. So please do that, Jackie, as I can see you over there, and have an interaction. All right, you can also post other information here, that how we are planning to go ahead. So another important information I would like to give, that we were planning to have a mock test on the Saturday, which is going to be tomorrow, but as you have seen that many our learners from our group, they have requested for at least one more week, so we will be having it on next Saturday, but not unfortunately on Sunday. So next Saturday, let me tell you the date so that you can also post over here. So next Saturday is 23rd of May. We are going to have a mock test on Microsoft Teams, and then the coming Friday after 23rd, that is on 29th, we will be having our mock test on Facebook Live. So these two information I would like to request you to please post over here, so that rest of the learners who are not here today, they can also see. And as far as the examinations are concerned,
We already know that IGNOU has issued a notification for the examination postponement, so we really don't know as of now when we are going to conduct the exam, but as far as the information we have is that not in June. So June we are not having the examination, at least for online learners, because there are entirely two different modes, so any information is not common. For online learners, online examinations will be conducted by NTA, but we really don't know when. But they have said that not in May, as it was scheduled earlier. So it is not in May. You have your classes till the 30th May, which is the last Saturday. Yes, so it's going to be the conclusion of our learning experience. We will be having our sessions as planned, and you can ask me questions if you would like to say. Jackie is writing Dobry Vecher, sir. Dobry Vecher, Jackie. Очень приятно. Хорошо. अब जैसे last time, if you remember that we have requested, Manas is also saying Dobry Vecher Manas. If you have access to our online material, the e-content, we were discussing about this block 2 of ORU 001, out of which we have the unit 3. So right now I am going to read a small passage, a text from the unit 3, precisely it is 3.2. If you can post that PDF here, it's all right, or otherwise, Jackie, you can post the link to our group and they can access the block 2 of the ORU 001, or you can simply copy the link from eGyan Kosh and post it. Let people have access to it and then they can follow. Okay, mocks test will be multiple choice, yes, so it will be MCQs only, no subjective, no descriptive, only MCQs. So we were in the section 3.2, use of verbs of motion, Russian language. As you have seen that we have, let me tell you briefly about what we have done before. Before we have done lot of new stuff. After we have done very simple things, that learning the letters, learning about vowels and consonants, learning about pronouns, learning about nouns, learning about their gender. Then we have also discussed about how the adjectives and the ending of the nouns determine each other and they are always in agreement. Then we have used the question что and кто. Then we have used the question какой. Then we have also used the question когда, во сколько, and many other new things which we have done already. Precisely, I believe that many of you have found it not very difficult. You have gone through, and many people are working hard to understand this as well. This is this thing I need to acknowledge here. And recently we have came to the new fact of the Russian is that the verbs of motion are glagoli движения. Glagoli движения. Glagol means verb. So because we are saying verbs, so it's a plural. So gлаголы движения. Движение means movement. So movement, verbs of motion. So anything which moves like that. So movement or something like action which is moving is движение. Движение. Движение means movement. So движение. So verbs of motion. Whenever we have this relation of saying of, we use genitive case. So глаголи движения. Глаголи движения. So the verbs of motion comprises many different verbs like идти ходить, to go on foot, but there is a basic difference between these different verbs which you use, because they are exactly they belong to two different groups. The first group is incomplete action. It is идти, means to go on foot, but it's simply one direction, whereas ходить means multi-direction. So there you have used certain expressions like каждый день, часто. So these different kinds of expression, whenever are used in a text or in a sentences, it means that you are going to use the second group of the verbs of motion. So in place of идти ходить, you will be using ходить. For example, you have this
Khajic Kashdijian on Khojet na stadion means he goes to stadium every day. So it is a continuous. So he is going and coming, going and coming. So it is a continuous. It is not once. Whereas when you say Ichi moi brat ijot na stadion, it means that he is going to the stadium. That's it. I don't know whether he goes every day or it's a multi-direction. It is simply unidirection and one time. So that's why how do we differentiate between these two groups of verbs of motion. But very important aspect of the verbs of motion is that you need to learn their conjugations as well. So ichi and khajic, yekhaj and yezij, these are the two basic verbs of motion. Ichi means to go on foot, yekhaj means to go by transport. They belong to the group number 1, which means unidirection or one direction, whereas the group number 2 has khajic and yezij. Khajic and yezij means multi-direction. Khajic means to go on foot but multi-direction. Yezij means to go by transport. It is also means multi-direction. Каждый год я езжу в Moscow. Каждый год я езжу в Moscow means every year I go to Moscow. So it is a multi-direction. So you can use these kind of different verbs and you can differentiate between kind of expression you use, and it is very evident and very clear. It's not very difficult to use these two different verbs. But basic question when we ask is kuda vi idioce ili kuda vi yejice. So like these kind of questions, whenever you are asking, so the answer would be same, very similar, that the person would reply. So Menka is writing, good evening sir, I both means and. E means actually and when we are joining two different words, whereas A is used only in colloquial, in conversational, which means and or means but also sometimes depending upon the context. E is very clear that it is and when we are talking about two different things. So how and where particular E to be used according to the sentences. I think it's clear now. A also means but sometimes. E it also means and sometimes. It depends upon the context. Whereas E always means and. Ya I moi brat живем в этом доме. Me and my brother live in that house. Whereas у меня хорошо, а как ваши дела? I am fine, and how are you? Here I have used are. So like this you can make out that how these different as per the context of the conversation how we use. But E is very clear. It is very clear. E cannot be replaced by A. So out of 100, if you are using for and, it would be E, and sometimes depending upon the context A. And A is only very casual, very conversational, very colloquial. It is not very formal. So it is very easy to identify. If you make a few sentences and try to use A and E, it would be very easy for you as well. जैसे कि हिंदी में अगर हम लोग बोलें Моя мама и сестра работают в школе. My mother and sister, they work in a school. Here I have used E and for and. У моей мамы все хорошо. My mother has everything all right. У сестры нехорошо. And of my sister, not everything very fine. So like this you can make sentences, and depending upon the context you can make out. There I haven't used E. Alright, so I hope it's clear to you. You can also ask me about other things here as well. If you have questions you can also post. Alright, सुखविंदर जी, यहाँ पे आप टेलीग्राम का लिंक भी डाल दीजिएगा. इफ़ somebody wants to join the group and have access to our previous lectures, they can also see. Okay, so the use of verbs of motion Russian language we have done yesterday on last Wednesday. So I am reading 3.2.
ओके, जैकी ने डाल दिया है, दैट्स ऑल राइट, वेरी नाइस, थैंक यू. Каждое воскресенье, если погода хорошая, мы ходим в соседний лес. तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक्सप्रेशन है каждое воскресенье. каждое воскресенье मतलब हर इतवार को, या एवरी संडे. Если погода хорошая, мы ходим в соседний лес. If the weather is good, अगर मौसम अच्छा है तो we ходим в соседний лес. Then we go to the neighboring forest. Neighboring is соседний. соседь means neighbor. लेस means जिसे हम लोग जंगल बोलते हैं या फॉरेस्ट, लेस. अब खोजिम इज फ्रॉम खाजीज. जैसे इची हमने किया था वैसे खाजीज. तो ये सेकंड ग्रुप का है, मल्टी डायरेक्शन का है, जो रिपीटिटिव है, रिपीटिटिव. तो खोजिम इसका मतलब ये है कि हर इतवार को अगर मौसम अच्छा है तो हम अपने जो बगल में या हमारे नेबरहुड में पास में जो जंगल है वहाँ जाते हैं. तो इस तरीके से जब हम कोई चीज़ बोलना चाहते हैं तब हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे तो हमें पता है हम जाते रहते हैं. जैसे मान लीजिए कि हम सामान लेने जाते रहते हैं, या फिल्म देखने जाते रहते हैं, या किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते रहते हैं. अगर हम वहाँ पे पैदल जाते हैं तो हम लोग खजीच यूज़ करेंगे. और अगर आप बाय ट्रांसपोर्ट जाते हैं तो ये खच और ये जी चूज़ करेंगे. अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक ही बार गए वहाँ पे, बार बार नहीं जाते हैं, तो आप ये खच यूज़ करेंगे अगर कार से जाते हैं या किसी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं. अगर आप बार बार ट्रांसपोर्ट से जाते हैं उस रेस्टोरेंट में तो आप ये जी चूज़ करेंगे. मी चास्ता ये जिम. चास्ता मीन्स ऑफन. मी चास्ता ये जिम वैत रेस्तरान. क्योंकि इसमें हम लोगों ने जब रेस्टोरेंट यूज़ किया है तो रेस्तरान हो गया वो. चास्ता ये जिम क्योंकि वी गो देयर ऑफनली बाय ट्रांसपोर्ट. मी चास्ता खोजिम भी हो सकता है अगर हम पैदल जाते हैं तो. बस फ़र्क इतना है कि हम कैसे जाते हैं, वहाँ पैदल ही चले जाते हैं या हम वहाँ जो है ट्रांसपोर्ट से आते हैं. क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई आसपास की जगह तो ही पैदल जाएंगे हम लोग, तब हम वो वाले वर्ब यूज़ करते हैं. और जो थोड़ी जगह दूर होती है तब हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. तो उससे जो भी स्पीकर है और जो लिसनर है उसका अंदाज़ा हो जाता है कि हम पास में हैं या दूर में हैं. ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ हो गई. Этот лес очень красивый, большой и густой. तो एतत जब लगाते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एता, लेकिन जब हम किसी को डेफिनेटली बोलना चाहते हैं तो उसके जेंडर को यूज़ करते हैं. तो जब अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है, और ये चीज़ हमेशा इसमें है विनिचिलनी प्रदेश में जो कि एक्यूजेटिव केस है, और वर्ब्स ऑफ मोशन में भी ये चीज़ हम यूज़ करते हैं एज पर द जेंडर. एतत होता है मैस्कुलिन के लिए, एता मतलब ए तय और आ ये होता है हमारा फेमिनिन के लिए, ए तो होता है हमारा न्यूट्रल के लिए, और एची होता है प्लूरल के लिए. ये भी आप आगे समझ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए कि ये इस तरीके से भी रशियन में होता है. दिस के लिए होता है ये, और दीस के लिए है एची, एची. ठीक है, तो этот лес очень красивый, большой и густой. तो दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट is very. Очень means very, красивый means beautiful, большой means big, и густой मतलब dense, घना है. यह जो जंगल है ये काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा है और काफ़ी घना है. तो इस तरीके से ये उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं जिसमें कि ये हर इतवार को अगर मौसम अच्छा होता है तो ही जाते हैं. तुदा खोजत राजनीय लोजी. तुदा मीन्स देर, खोजत खजीच होता है ना, टू गो बाय फुट. तो खोजत फॉर हु, फॉर प्लूरल, जब लोगों की बात कर रहे हैं अनी खोजत. राजनीय लूजी, लूजी मीन्स पीपल, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली प्लूरल है ना. तो प्लूरल के लिए राजनीय, राजनीय. डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दे गो देयर टू द खोजत. दे खोजत मतलब वहाँ पे घूमते हैं, चलते हैं. निकतरीय सीजियतनस का मियाके, निकतरीय गुलियायुत रसगा वारी वयुत पायुत पेसनी. तो निकतरीय मतलब कुछ लोग, निकतरीय. कतोरी मीन्स वैसे रशियन में होता है विच, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है निकतरीय मीन्स अ फ्यू, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अ फ्यू.
कुछ लोग सिजियत नस कामिए के, तो कुछ लोग बेंच पे बैठ जाते हैं, सिजियत फ्रॉम द वर्ब सिजियत, नस कामिए के, नाचुम नस कामिए के, कामिए का मीन्स बेंच, निकतरिए गुलियायु फ्रॉम द वर्ब गुलियाच मीन्स टू वॉक अराउंड, निकतरिए अ फ्यू पीपल दे वॉक अराउंड, गुलियाच गुलियायुत, तो लूजी गुलियायुत, रसगा वारिवयुत फ्रॉम द वर्ब रसगा वारिवच, रसगा वारिवच मीन्स टू कन्वर्स, टू टॉक, रसगा वारिवयुत, so a few people they sit on the bench, a few people they walk around, रसगा वारिवयुत they talk, payut pesni from the verb पेच means to sing and some sing songs, पेसनी है ना इसलिए songs, इसलिए क्या हो गया ये गाने, कुछ लोग गाने गाते हैं। तो बहुत तुदा खोजत राजनीय लूजी निकतरी सिजियत नस कामिया क्या, निकतरी गुलियायुत रसगा वारिवय पायुत पेसने, तो वहाँ पे कुछ लोग घूमते हैं, खजीज से हो गया ये खोजत, सो पीपल दे वॉक अराउंड, खोजत राजनीय लूजी डिफरेंट पीपल वॉक अराउंड देयर, निकतरी सिजियत नस कामिया के अ फ्यू पीपल सिट ऑन द बेंच, निकतरी गुलियायुत अ फ्यू पीपल दे जैसे घूमते हैं, दे वॉक और दे स्ट्रॉल, टेक अ स्ट्रॉल, ये इसको हम रशियन में गुलियाच बोलते हैं, टू टेक अ स्ट्रॉल या घूमना फिरना, रसगा वारी दे टॉक अप, पायुत पेसने सो दे सिंग अ सॉन्ग। तो मान लीजिए जैसे अभी धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं कि सर काइंडली रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम वेयर द एक्सप्रेशन तुदा इज़ देयर, सो अगर मान लीजिए कि किसी का कनेक्शन भी हट जाता है या नहीं सुनाई दे रहा है उनको, तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, और बाद में सुन लेंगे उसको, तो बीच में क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ हाँ आप लोग इसका भी ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए प्योर कनेक्शन है या कोई और इशू है तो उस चीज़ को हम कम रिपीट करें, जिससे कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में भी सुन सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग वहाँ पे घूमते हैं, है ना, कहते हैं ना तुदा खोजत राजनी लोजी, वहाँ पे कुछ लोग घूमते हैं, निकतरी सिजियतनस कमिए के, कुछ लोग वहाँ पे बेंच पे बैठ जाते हैं, कमिए का मीन्स बेंच, निकतरी गुलियायत, कुछ लोग वहाँ पे घूमते हैं, गुलियायत मतलब टू टेक अ स्ट्रॉल, रसगा वारी, कुछ लोग बात करते हैं, पयुत पेसने, कुछ लोग गाना गाते हैं, इनगदा ल्यूजी लेजत प्रयामन त्रव्य, कई बार, इनगदा मतलब समटाइम्स रशियन में, इनगदा ल्यूजी लेजत प्रयामन त्रव्य मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि लोग घास पे ही लेट जाते हैं, ठीक है, तुदा गुलियायुत इनगदा ल्यूजी लेजात, लेजात मतलब टू लाई डाउन, प्रयामा स्ट्रेट अवे, नत्रव्य ऑन द ग्रास, ई चिताइत कनीगी और किताब पढ़ते हैं, चिताच कनीगी मीन्स टू रीड अ बुक, है ना, तो ये नीचिलनी का एक्सप्रेशन है, चिताच मीन्स टू रीड, और अगर कोई फेमिनिन जेंडर का वर्ड होता है जैसे कनीगा है तो चिताच कनीगू, लेकिन प्लूरल है तो कनीगी, चितायुत कनीगी, लिसु येस निबल्शोय ओ ज़ेरा, अब लिसु क्यों हो गया, लेस है, फॉरेस्ट है, लेकिन प्रपोजिशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम जानते हैं वुगलू है, इन द कॉर्नर, वैसे ही फ्लिसु तो इन द फॉरेस्ट, फ्लिसु येस निबल्शोय ओ ज़ेरा, देयर इज़ नॉट अ वेरी बिग, ओज़ेरा मतलब जैसे झील है ना, झील है, पॉन्ड कह लीजिए, नी बल्शोय क्यों यूज़ किया है, जैसे बल्शोई होता है बिग, नी बल्शोई मतलब नॉट बिग, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल भी बोल सकते हैं, उसके लिए क्या है मालिंग के, ये स्मॉलिंग का है ज़रा, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं रशियन तो भी हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं नी लगा के, मतलब क्रसीवी नी क्रसीवी मतलब खूबसूरत नहीं खूबसूरत, तो नी क्रसीवी, ऐसे ही बल्शोई नी बल्शोई, तो नी लगा के हम उसका एंटोनिम भी बना सकते हैं। तो अभी सुनाई दे रहा है ना धर्मेंद्र जी आपको, ये अभी भी ऑडिबल नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स मैसेज डालते रहा कीजिए, जिससे कि पता चले कि सेशन चल रहा है हमारा, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूँ और वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा भी तो होता है कई बार, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा सा कुछ बीच में लिख दिया कीजिए, जिससे कि यहाँ पे भी पता चलता रहे कि भाई
जो है काम हमारा ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, कनेक्शन आ रहा है वैसे तो। ठीक है, कोई कोई बीच भी कुछ लिख दिया कीजिए, उसके आगे चलते हैं हम लोग। तो नी बल्शोय ओजेरा सबको समझ में आ गया है? ठीक है, ओजेरा, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, ओजेरा। ओजेरो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओजेरा, बिकॉज ओ पे स्ट्रेस आ गया ऑलरेडी। ओजेरा। ल्यूजी तुदा गुलियायुत, उसके बाद देख लीजिए अब, ल्यूजी तुदा गुलियायुत अब्दिखायुत सबिरायुत गुरबी कोपायुत सब ओजेरा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ल्यूजी तुदा गुलियायुत, तुद गुलियायुत। तो पीपल वॉक अराउंड हेयर अद्दिखायुत, फ्रॉम द वर्ब अद्दिखाच। अद्दिखाच मीन्स टू टेक रेस्ट। Sabirayut, Gribui, Sabiraj means to collect. Gribi means mushroom. Kupayutsa वोजिर, from kupatsa verb है, means to swim. वोजिर है, तो कहाँ पे ये swim करते हैं? They swim in the pond या झील जैसे कह लीजिए। ठीक है। रयादम ये मालिंकी जेट्सकी पार्क, रयादम मतलब पास में ही, रयादम। गिजे नखोजित्सा वाश ऑफिस, यानी गिजे नखोजित्सा वाशा शकोला, मया शकोला नखोजित्सा रयादम। कहाँ पे आपका स्कूल है? मेरा स्कूल पास में है। तो रयादम को हम लोग जब यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं जैकी जी? सर स्टील इज बिलोंग टू विच जेंडर? एज आई नो लास्ट लेटर इज सॉफ्ट साइन, बिलोंग टू फेमिनिन, इज दिस राइट? स्टील वैसे तो मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है। इस केस में कई ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें सॉफ्ट साइन है, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ हमें याद करना होता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई ये जो है कौन से जेंडर का है। जैसे मान लीजिए आपने कहा सलवार, सलवार तो डिक्शनरी है और सॉफ्ट साइन भी है, लेकिन मैस्कुलिन है। चितराज में भी सॉफ्ट साइन है, सुनने में भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन फेमिनिन है। कारण इस तरीके से कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे अभी आपने ये सील बोल दिया, तो ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिसको हमें याद करना पड़ता है। तो डिक्शनरी में उसको, मैं एक डिक्शनरी भी आप लोगों को शेयर करूंगा, उसमें ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ना सॉफ्ट साइन वाले, वो सब आप लोग एक किताब में लिख के, कॉपी में लिख के उसको रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आप लोग एडजेक्टिव लगाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसका ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है जैकी जी, क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। रयादम येस मालिंकी जेट्स की पार्क, तो रयादम मतलब पास में, येस है मतलब नियर बाय, देर इज़ अ स्मॉल, मालिंकी स्मॉल हो गया, जेट्स की पार्क, जेट्स की मीन्स बच्चों का, पार्क मतलब बच्चों के खेलने का पार्क पास में ही है। मालिंकी जेट्स की पार्क, स्मॉल पार्क फॉर चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस पार्क। ठीक है, रयादम ये मालिंकी जेट्स की पार्क। और जेट्स के साथ क्या होता है? लास्ट टाइम हमने किया था, जेट्स के साथ मतलब किंडरगार्टन, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। बच्चों को स्कूल में भी भेजते हैं केजी में, तो उसको किंडरगार्टन को हम लोग रशियन में जेट्स की साथ बोलते हैं, जेट्स की पार्क नहीं बोलते हैं। इसका ध्यान रखना, पार्क मतलब पार्क ही हो जाएगा। जेट्स की साथ जब हम लोग बोलेंगे तो इट मीन्स दैट द प्लेस वेयर वी सेंड चिल्ड्रन टू स्टडी हु आर लेस देन 5। ताम जेची गुरायत कतायुत सन वेलोसिपेड, तो वहाँ पे ताम देर, जेची मतलब बच्चे, तो जेची भी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, वरना रिब्योनक होता है, मालचिक होता है लड़कों के लिए, और जेवचका होता है बच्ची के लिए। जेची इग्रायुत कतायुत सन विलासीपेद, इग्राज मीन्स टू प्ले, कतायुत सन विलासीपेद, विलासीपेद मतलब साइकिल, तो कतायुत, तो कतात्सा मतलब टू राइड। ठीक है, कतात्सा, कतात्सा ना चुम मतलब क्या, किस चीज़ को चलाना, तो बाईसाइकिल को चलाना, जैसे घोड़ा चलाना, हाथी को चलाना, तो उसमें ये वर्ड यूज़ होता है कतात्सा। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। लियस एता प्रिक्रासने मेस्ता द्ल्या ओद्दिखा, तो ये जो फॉरेस्ट है, दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस फॉर ओद्दिखा, मतलब आराम करने के लिए बहुत ही
बेहतरीन जगह है। प्रिक्रासने मेस्ता इसीलिए लिखा है क्योंकि मेस्ता से डिटरमिन हो रहा है। मेस्ता जो है इसका नाउन है जगह, और प्रिक्रासने मतलब वंडरफुल, तो प्रिक्रासने मेस्ता। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप लोग, मुझे लगता है सब लोग समझ गए। और इसमें जो नीचे दिए हुए हैं न्यू वर्ड्स उसको देख लीजिए। कार्सदर मीन्स एवरी, पागोदा मीन्स वेदर, ससेद नीलेस मीन्स नेबरिंग फॉरेस्ट, गुस्तोई मीन्स डेंस, राजनी मीन्स डिफरेंट, लिवजी मीन्स पीपल, स्काम्याइका मीन्स बेंच, इनगदा मीन्स एट टाइम्स या समटाइम्स, प्रियामा मीन्स डायरेक्टली, त्रवा मीन्स ग्रास, ओजेरा मीन्स लेक, सबीराज मीन्स टू कलेक्ट, Gribui means mushroom, Kupatsa means to swim, Katatsa na velocipede to ride a bicycle, Prekrasna means excellent या wonderful, Udg means rest। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को आज बड़ा आनंद आया होगा इस छोटे से टेक्स्ट को पढ़ने में और समझने में, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तो एक बात है ही, उसको इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होना, जिससे कि आप उसमें क्रिएटिवली अपने आप को भी एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो एक छोटा सा होमवर्क सोचा हूँ दे देता हूँ कि इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उसमें से 4 वर्ड्स कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस बना के भेजेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये जो न्यू वर्ड्स हैं जो अभी हमने पढ़े, इसमें से कोई से भी 4 वर्ड्स आप ले लीजिए और एक एक लाइन का सेंटेंस बना के मुझे भेज दीजिए। टोटल 4 सेंटेंस भेजने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क समझ में आ गया तो मुझे एक बार ओके कर दीजिए आप लोग, जिससे कि फिर हम लोग आगे चलें। एक बार ओके कर दीजिए, होमवर्क समझ में आ गया है तो। इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। खुदा मी खोजिम काशते बस क्रिश्चियनिया। ये पूछ रहा है कि हम लोग हर संडे को कहाँ जाते हैं, ये देखना है आपको। इसके आंसर दिए हुए हैं टेक्स्ट में ही, इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ईश्वर खोजित वेतत लेस, और कौन जाता है उस जंगल में। तो ये इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। तो ल्यूजी जेलयुत वेतम लिसू, लोग वहाँ पे क्या करते हैं। गिजे ये स्निबर्शो ज़रा, कहाँ पे एक छोटा सा लेक है। तो जेलयुत जे चीफ पार्क है, बच्चे वहाँ क्या करते हैं। तो ये सब दिया हुआ है उसमें, तो इसको आप करेंगे तो और आपको जो है अच्छा लगेगा। इसको भी करिए, और अगर जो लोग भेजना चाहते हैं तो होमवर्क में इसको भेज सकते हैं। बाकी 4 सेंटेंसेस आपको भेजने हैं, वो बेसिक मेन वर्क है, वो मेन करना है काम। ठीक है, तो उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। इच्छी खजीज का फंडा समझ में आ गया है, 1 डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन, और इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। एक बार इसका हम लोग कंजुगेशन देख लेते हैं ज़रा। इची मीन्स टू गो, ये ऑन फुट होता है, 1 यूनि डायरेक्शन होता है। खजीज मीन्स ऑल्सो टू गो ऑन फुट, ये मल्टी डायरेक्शन है। या इदू ती इजियोश ओन अना इजियोत मुई इजियोम वी इजियोचे अनि इदू। खजीज का कैसे होता है, या खजू ती खोजिश ओन अना खोजित मुई खोजिम वी खोजीचे अनि खोजियत। ठीक है, दोनों एकदम अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, तो इसको उस तरीके से याद करेंगे आप और उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ये जाने का जो है टू गो ऑन फुट, उसके ही 2 अलग अलग रूप हैं। दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि एक जो कॉन्टीन्यूस में होता है, बार बार रिपीटिटिव होता है, वो खजीज होता है ग्रुप 2, जबकि जो फर्स्ट वन है इच्छी, ये यूनी होता है, वंस, इसमें रिपीटिशन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1। ठीक है, उसके बाद अभी पास्ट टेंस तो हमने किए नहीं मैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको पास्ट टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। 5 मिनट उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में अभी तक हमने किया नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशंस किए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, रबोतच, जो कि मुझे लगता है सभी को पता है। रबोतच का मतलब होता है टू वर्क। फिर हमें ये भी पता है कि भाई रशियन में 3 जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। अगर पास्ट टेंस में मुझे ये बोलना है कि मेरा भाई स्कूल में काम करता था,
ठीक है, मेरा भाई स्कूल में काम करता था। तो टू वर्क के लिए हमारे पास वर्ब है रबोतच। अब काम करता था बोलना है मुझे। फिर मुझे ये भी पता है कि मुझे सेंटेंस में और क्या पता है, मोई ब्रात मीन्स माई ब्रदर काम करता था। तो सिंपल क्या है, रबोतच में से अ तय और सॉफ्ट साइन हट जाता है, रबोता अ और ल लग जाता है, अ और एल, रबोतल मोई ब्रात रबोतल स्कूले मीन्स माई ब्रदर वर्कड एट स्कूल। मेरा भाई स्कूल में काम करता था। अब मुझे बोलना है कि मेरी बहन स्कूल में काम करती थी। माया सिस्तरा रबोतला, भाई के लिए है रबोतल, सिस्टर के लिए फेमिनिन जेंडर के लिए है रबोतला। अब शकोले ही रहेगा। उसके बाद है, और न्यूट्रल जेंडर का तो हमें यूज़ नहीं करना है कुछ। उसके बाद है प्लूरल, हाँ एकदम सही मानस, परफेक्ट। उसके बाद है हमारा प्लूरल रजीचली मतलब पेरेंट्स, माई रजीचली रबोतली स्कोले, माई रजीचली माई पेरेंट्स रबोतली वर्कड दे वर्कड, है ना, रजीचली रबोतली स्कोले, सो दे वर्कड और माई पेरेंट्स वर्कड, ये प्लूरल के लिए हो गया। बहुत सिंपल है, रबोतल रबोतला और प्लूरल के लिए रबोतली। तो ल और अ और ल और ई ये बेसिकली आखिर में लगता है और आपका पास्ट टेंस बन जाता है। बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही और भी जितने भी वर्ब्स आपने किए हैं, जैसे रीच किया है, रीच मतलब टू लिव, या रील डेली, आई लिव्ड इन डेली, माया सिस्टरा रिला डेली, माई सिस्टर लिव्ड इन डेली, माई रजीचली रीली डेली, माई पेरेंट्स लिव्ड इन डेली। तो ऐसे ही आप बहुत आराम से और भी वर्ब्स को ट्राई करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा, अगर आप लोग करना चाहते हैं होमवर्क तो कर सकते हैं। कोई भी 5 वर्ब उठा लीजिए, रबोतच है, जनाच है, पनीमाच है, ये खच है, या फिर आप ये खच बहुत आसानी से बना लेंगे, ये खल, ये खला, ये खली। उसके बाद और भी जो हमने वर्ब्स किए हैं, चिताच है तो उसको चिताल, चिताला, चिताली। जैसे या चिताल कनीगो, आई रेड अ बुक, अना चिताला कनीगो, शी रेड अ बुक, एंड दे रेड अ बुक के लिए अनि चिताली कनीगो। तो कनीगा कनीगो हो जाता है बिकॉज वो विनी चिलनी का एक फंडा है। अगर आप कोई उस चीज़ में ऐसा कोई लगाना चाहते हैं जो फेमिनिन जेंडर का नहीं है वर्ड, मान लीजिए कि तो उसमें जैसे गज़ेता है वो भी गज़ेतू हो जाएगा, लेकिन तो जर्नाल कर दीजिए, जर्नाल, या चिताल जर्नाल, आना चिताला जर्नाल, आनी चिताली जर्नाल। तो उसमें जर्नाल रहेगा क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है। तो बड़े आराम से उसको बना सकते हो आप, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए, फिर हम लोग इस सेशन को आज वाइंड अप करेंगे। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ही, आप लोग देख सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि you are also finding these kind of live sessions on Facebook. We are conducting time to time, interesting enough, and you can also ask your friends and other, if you have colleagues and family members, you can also ask them to join us. It would be a very good opportunity for us to interact and spread the knowledge of Russian through Facebook Live. So here I, Shivaji Bhaskar, faculty and program coordinator of CRVL Russian ODL and online, would like to thank you everyone for joining for the Facebook Live. So we will be in touch again next Friday at 4 as we have decided from. Alright. Let me thank everyone once again for joining us for this wonderful session here. You can also pose your question after the session, and I find time I'll